evening, everyone. Welcome to Pro Talent, and I'm Nitin Parmar, and I welcome you all for this wonderful session on COVID-19 Everything to Know. My dear students, we have started this series called Explain, and we try to pick up some important items to explain you varieties of the important current affair items. So दोस्तों, ये जो आज बात करने वाले कोविड-19, आई एम श्योर आपको बहुत सारा पता होगा, ठीक है, बट आई एम जस्ट पुटिंग एवरीथिंग इन पर्सपेक्टिव from the exam point of view so that it turns out to be easy for you to understand. So दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, फटाफट मैं आपको बता दूं प्रो टैलेंट के कुछ इंपॉर्टेंट से पहलू आपको ध्यान में रखने हैं. एक तो आपको टेलीग्राम चैनल, ये रहा लिंक उसका, कैट 2020 प्रो टैलेंट करके लिखा होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. दैट्स अ वंडरफुल प्लेस. वी आर से अपडेटिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट ये लॉकडाउन में वी आर नॉट एबल टू put a lot of content in it, but once this lockdown gets over, you'll get a lot of content. Okay, you'll also get information about this video lectures. उसकी लिंक आपको वहाँ से मिलेगी. उसके अलावा भी ये कैट का एक कोर्स है which is available on app as well as on our website. ऐप का नाम है प्रो टैलेंट डिजिटल. ओके, आप सर्च करेंगे प्रो टैलेंट डिजिटल के नाम से तो आपको मिल जाएगा वो, ठीक है ना. और उसके अलावा आप अगर वेबसाइट से उसको एक्सेस करना चाहते हैं देन इट इज कॉल्ड courses.protalentdigital.com और वहां से आपको ये मिलेगा. आई होप इट इज वेरी गुड एवरीवन. लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट टुडेज डिस्कशन. कोविड-19 इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे, और आज मैं आपके सामने वो बातें करूंगा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है और दूसरा जहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, ताकि आपके मन में हम थोड़ी क्रिस्टल क्लैरिटी डाल सके. सो दिस कोविड-19 इज नोवेल कोरोना वायरस. दिस इज 2019 NCOV इज अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस, विच मीन्स पहले भी कोरोना वायरस था. Yes or no? It's a new strain, ठीक है, that has been not previously been identified in humans. So coronavirus was identified, but new strain was not identified. What is the name of this new virus? It is severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, or popularly SARS-CoV-2. And what is the name of a disease? It is called COVID-19. So this is a disease, और ये वायरस का नाम है SARS-CoV-2. That's the name of a virus. ठीक है. So this, you can say, transmission related data of COVID-19 is generally tells that it is much higher than earlier SARS. उसका transmission का rate is very high. Okay, ठीक है. So out of 3, that is 2000 NCOV या SARS या MERS, highest fatality rate. You know fatality rate? फैटेलिटी रेट मतलब आदमी के मरने की एक ऐसे रेट. ओके, जितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ है उनमें से कितने परसेंटेज लोग मरेंगे, दैट इज कॉल्ड फैटेलिटी रेट, है ना. हाउएवर कोविड-19 का जो ट्रांसमिशन रेट है विच इज ह्यूज, ठीक है, मर्स हैज हाईएस्ट फैटेलिटी रेट. Okay, so what is the number roughly? If you look at number, COVID-19 is 3 to 4%, SARS is 10%, MERS is 30%. So why should we bother? We should really bother because COVID-19 का जो ट्रांसमिशन रेट है that is huge, और वो आज वर्ल्ड में ज़्यादातर सभी कंट्रीज में हो चुका है, इसीलिए तो उसको पेंडेमिक बोला गया. ये सुनो, पेंडेमिक किसको बोलते हैं 2 मिनट में हम बात करते हैं दोस्तों, पर कोविड-19 का फैटेलिटी रेट आपका 3 to 4% है, ठीक है. सो देखिए दोस्तों, SARS-CoV-2 कोरोना वायरस 1960s के ज़माने से होता था, ठीक है. सो अर्लियर दे वर डिस्कवर्ड इन 1960s. इनिशियली they were not considered as a threat because there were milder symptoms like cough and cold in human, which is normal. Yes or no? So we have a lot of cough and cold related problems. This is zoonotic. Okay, this virus is zoonotic, which means it is transmitted from animals to humans. That's called zoonotic. Okay, the known coronaviruses which are circulating in animals are many, and there are several strains are there, and the current strains, ठीक है, are very dangerous. ठीक है, only 7 strains have known to infect human being. ठीक है, और उन 7 में से ये एक वाला SARS-CoV-2 वाला जो स्ट्रेन है दैट इज डेंजरस. उसमें भी, है ना, डेंजरस गुजरात में जो फैला हुआ है उसका जो स्ट्रेन है दैट्स वेरी डेंजरस, है ना. सो हाउ इट इज स्प्रेडिंग? इट इज बिटवीन पीपल हु आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट
ऑन एन एवरेज 6 फीट, है ना, 2 गज जमीन का अंतर, ऐसा मोदी साहब ने बोला था, विच इज फेयर, ओके, विच इज फेयर, ओके. सो 6 फीट का डिस्टेंस है एंड इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट प्रोड्यूस्ड, है ना, व्हेन लेट्स से आई एम अफेक्टेड एंड व्हेन आई एम स्पीकिंग, व्हेन आई एम कफिंग, व्हेन आई एम स्नीजिंग, तो मेरे मुंह से, मेरे नाक से ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगे जो हवा में स्प्रेड होंगे और वो सामने वाले के रिस्पायरेटरी सिस्टम से जाएंगे. सो सबसे पहले अफेक्ट होने वाली जगह कौन सी होगी? आपका मुंह और आपका नाक. उसकी वजह से मास्क पहनना जरूरी है. Yes or no? I hope you are able to understand this. It may be possible that a person can get COVID-19 by even touching the surface, ठीक है, और object that has virus on it. So for example, किसी को वायरस है और उसने मानो let's say ये पेन पकड़ी है and I picked up the pen, तो मेरे हाथ में आ सकता है वायरस and when I touch my mouth there is a possibility कि मुझे भी वो लग सकता है. So there is varieties of the ways in which it is spreading. Okay, ठीक है, okay. So if we talk about this human to human transmission, which is basically जो previous SARS में होता था वैसा ही हुआ, ठीक है. MERS, SARS में जो human to human transmission होता था, it was actually similar, ठीक है. Now what is the reason why this transmission rate is more for SARS-CoV-2? ठीक है, देखिए दोस्तों, जो previous SARS थे they were affecting lungs, ठीक है, तो which means lungs तक जाने में ये पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बाद धीरे धीरे लंग्स में जाएंगे. सो दैट जनरली टेक्स टाइम और उसके पहले यहाँ पे शायद उसको रोका जा सकता था बॉडी के इम्यून सिस्टम के द्वारा, ठीक है. बट इन्फेक्शन ऑफ COVID-19 इज इन द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, okay, which means it is happening in the throat, it is happening in this upper part and thereby it is faster which is getting it spreaded, okay. So with COVID-19, every time a patient coughs or sneezes, the droplets containing that virus are released. दोस्तों, it is not just coughing and sneezing. अगर कोई बोलता है, ठीक है, और वो COVID-19 वाला है, बोलने में भी आप बहुत सारे ड्रॉपलेट्स बाहर निकालते हैं, यस और नो, ठीक है. तो दोस्तों, बोलने वाले की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है. इसीलिए अगर आप दुकान पे जाते हो और दुकानदार से बात करते हो तो मास्क निकाल के बात करना सही तरीका नहीं है. That is a simple thing, okay. So what is the incubation period of this against a virus? Virus एक मजेदार सी चीज होती है, उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है. वायरस एक तरीके का RNA होता है दोस्तों, RNA. व्हाट इज RNA? रिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है. वो बेसिकली हमारा जो DNA होता है वैसे ही वो RNA होता है और RNA इज नीदर लिविंग थिंग नॉट डेड थिंग, यस, विच मीन्स एक तरीके का स्ट्रेन होता है, ठीक है. उसको वो थोड़े समय तक रहता है ऐसे डेड, ठीक है, और उसको जैसे सेल मिल जाए, सेल में जाकर वो डेवलप होता है. एक बार किसी को इन्फेक्ट हुआ, इन्फेक्ट होने के बाद वो अपनी मल्टीप्लिकेशन बढ़ाता है, वो बढ़ाने के पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, यस और नो. सो इंक्यूबेशन पीरियड इज इन द रेंज ऑफ 2 to 14 डेज. किसी बंदे के अंदर 2 दिन में भी बड़े नंबर बन जाएंगे, किसी में 14 दिन तक भी नहीं बनेंगे. सो ऐसे लोग होते हैं जिसके अंदर मतलब कोरोना वायरस है पर उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, ऐसे को बोलते हैं एसिम्प्टोटिक पीपल, है ना, जिसके अंदर सिम्टम्स नहीं है, ठीक है. सो इंक्यूबेशन पीरियड वेरीज बिटवीन पीपल टू पीपल. इन्फेक्शन हुआ और ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, उसके बीच का पीरियड को एक से बोला जाता है आपका इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है. दोस्तों, पूरे SARS-CoV-2 जो वुहान से निकला था ऐसा माना जाता है, आजकल तो उसके बारे में बहुत डिबेट चल रही है. देयर वाज अ सिनेरियो वेरिन अमेरिका सेड कि भाई हम चाइना के ऊपर डैमेजेस का आरोप लगाकर उससे कुछ डैमेजेस हम मांगेंगे, ठीक है, और चाइना बोलता हमारे यहाँ से कुछ हुआ नहीं है. सो देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ दो बड़ी महासत्ता लड़ाई की कगार पे खड़ी, ऐसा माना गया था, ठीक है. तो जीनोम पूरी सीक्वेंस अवेलेबल है, उसकी पूरी जीनोम सीक्वेंस अवेलेबल है. जीनोम सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया कि वो जिस जीन से, है ना, बना हुआ है उसका पूरा स्ट्रक्चर पता है. जब उसका पूरा स्ट्रक्चर पता है, दैट मीन्स वी नो कि ये किस तरीके से काम करता है. दैट मीन्स इट इज फास्टर फॉर अस टू मेक अ वैक्सीन, ओके. सो यूनम मतलब दिस जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है, विल बी वेरी यूजफुल, है ना, एंड रिसर्चर कैन बिल्ड सिंथेटिक वर्जन ऑफ पार्ट्स ऑफ द वायरसेस टू डेवलप वैक्सीन्स विदाउट नीडिंग कंप्लीट सैंपल्स ऑफ पैथोजेंस.
पूरी जानकारी नहीं हो पैथोजन की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हमारे पास उसका डीएनए मतलब उसका जीनोम स्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो हम उसको यूज़ करके, है ना, हम वापस खुद कोरोना बना सकते हैं और उस कोरोना से हम वैक्सीन बना सकते हैं। वैक्सीन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड द सेम स्टफ, है ना, you need the same, you can say, virus. Okay, in the absence of genome sequencing, laboratory work for development of vaccine can start only when the actual stock of virus is available. अभी हमारे पास है, इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं है, पर वैक्सीन बनाना, वैक्सीन को कॉमर्शियल वे में प्रोडक्शन करना, कंट्रीज अलग अलग कंट्रीज में भेजना, कंट्रीज के बीच में लड़ाइयाँ होगी उसके बारे में, पेटेंट का पावर देना और फाइनली हर एक आदमी को वैक्सीन लगाना, दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, जो ऐसा माना जाता है कि आज के समय में मिनिमम 2 से 3 साल का समय तो लगेगा, विच मीन्स वी हैव टू स्टे विद दिस पर्टिकुलर, वी कैन से, COVID-19 फॉर आवर लाइफ फॉर फ्यू ईयर्स एट लीस्ट। ठीक है, व्हाट इज द सोर्स, जूनोटिक सोर्स बोला था, तो विदर इट इज बैट्स, और कहाँ से आया, लोग बोलते हैं बैट से आया, कुछ लोग बोलते हैं पेंगोलिन से आया। ठीक है, पेंगोलिन एक तरीके के एंट ईटर एनिमल होते हैं, ठीक है, एंड दे आर बेसिकली ट्रेडेड फॉर देयर स्केल्स, उनकी जो स्किन होती है उसके लिए उनका खरीदारी बिकवाली होता है। ठीक है, सो पेंगोलिन से, बैट से आ सकता है। ठीक है, पर जनरली बैट आर नेचुरल होस्ट फॉर सेवरल वायरस, ठीक है, इंक्लूडिंग इबोला वायरसेस, है ना, निपा वायरस, आपने देखा होगा निपा वायरस के बारे में। ठीक है ना, निपा वायरस क्या होता है, निपा वायरस जो चाइना में आया था दोस्तों, सॉरी, निपा वायरस अपने केरला में आया था। ठीक है, चाइना से आया था आपका कोरोना वायरस। ठीक है, और इबोला वायरस जो आपका डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और ये सब जगह पे अवेलेबल है। सो बैट्स आर जनरली कंसिडर्ड टू बी नेचुरल होस्ट फॉर न्यूमरस वायरसेस। ठीक है ना, दिस वायरसेस आर मतलब देयर इन द बैट बिकॉज बैट इन सब के लिए इम्यून होता है, उसके पास ज़्यादा वायरल लोड होता है और वो एक तरीके से, है ना, उसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, वायरस इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन होती है, वो उसके अंदर बहुत कम होती है, तो वायरस उसमें घुस जाता है और वो इन्फ्लेम नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर सिम्टम दिखते नहीं है, तो वायरस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वायरस भी एक सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के एंगल से अगर हम बात करें, ठीक है, तो वायरस को भी अपनी लाइफ चलानी है, ये सनो, है ना, तो वायरस अगर एक पर्टिकुलर होस्ट में चला गया, ठीक है, अगर होस्ट में चला गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये होस्ट उसको तुरंत रिएक्ट करे, ये सनो, अगर ये तुरंत रिएक्ट करेगा तो इसके अंदर की एंटीबॉडीज इस वायरस को मार डालेगी। तो वायरस को ऐसे तरीके के होस्ट नहीं पसंद है, वो चाहता है ऐसे होस्ट जो कोई तरीके का रिएक्शन ना दे। ठीक है, और फिर वो वहाँ डेवलप हो और फिर वो जाकर दूसरे ऐसे होस्ट को मारेगा। दिस इज हाउ दे जनरली वर्क। ओके, दिस इज हाउ द वायरसेस एक्चुअली वर्क। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सबको ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड दोस्तों। ठीक है, सो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ रही है तो वंडरफुल पार्ट है। आगे बढ़ते दोस्तों। ठीक है, एंड एक समय पे करीबन जनवरी के महीने में WHO ने बहुत ही कॉशियस वे में बोल दिया था दैट दिस कोरोना, दैट इज COVID-19 इज नॉट पेंडेमिक। ठीक है, बट उसको बोल दिया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, दिस इज 6th टाइम, ठीक है, दे डिक्लेयर्ड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये उन्होंने ऐसे 6ठी बार बोला था। प्रीवियस टाइम एक बार स्वाइन फ्लू के बारे में बोला था, पोलियो और जीका के लिए एक बार बोला था और 2 बार इबोला के लिए बोला गया था। ठीक है दोस्तों, ये 3-3 महीने में इसको रिव्यू करते थे, इन्होंने मार्च में इसको रिव्यू किया। ठीक है, शुरुआत में उन्होंने बोला कि नहीं ये पेंडेमिक तो नहीं है। ठीक है, तो WHO जो भी अपनी एडवाइजरी देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, वो एनफोर्सेबल नहीं है, विच मीन्स अगर अमेरिका नहीं करना चाहे तो चलेगा, इंडिया नहीं करना चाहे तो चलेगा। तो WHO कंसिडरेबल रिसोर्सेज यूज करते करते, है ना, अलग अलग कंट्रीज के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश तो करता है, पर कोई बड़ी महासत्ता जैसे अमेरिका ना बोल दे तो WHO कुछ कर नहीं सकता। सो COVID-19 को इन्होंने पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया, है ना। सो इट इज पैंडेमिक इज नॉर्मली रिजर्व्ड फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस विच थ्रेटन लॉट ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड साइमल्टेनियसली। ओके, सो 2009 स्वाइन फ्लू को इन्होंने पेंडेमिक डिक्लेयर किया था। नाउ इट इज दिस यू कैन से COVID-19 इज पेंडेमिक नाउ। ठीक है, क्या कारण से पेंडेमिक करते हैं दोस्तों? पेंडेमिक करने का कारण है एक यूनिवर्सल वैक्सीन
का एब्सेंट होना, मतलब वैक्सीन नहीं है ना, कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी नहीं है, पता ही नहीं है कौन सी दवाइयाँ चलेगी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चलेगी कि नहीं चलेगी, यस और नो, ठीक है, दिस रेमडेसिविर चलेगी कि नहीं चलेगी, बहुत सारी दवाइयों का एक्सपेरिमेंट किया पर कोई प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड तो निकला नहीं, थ्रेटनिंग लैक्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो इस तरीके से ये पेंडेमिक डिक्लेयर होता है, और इनफैक्ट ये तो हम काफ़ी दिनों के बारे में बात कर रहे हैं, सो इनफैक्ट इट इज़ डेफिनेटली पेंडेमिक का सिनारियो पे आ चुका है, ठीक है। ओके, सो वायरस इज जनरली अगर ब्रांड न्यू होता है तो उसको पेंडेमिक बताना बनता है। WHO इज वेरी कॉशियस टू डिक्लेयर दिस पेंडेमिक, बिकॉज पेंडेमिक डिक्लेयर करने के बाद उसके बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर होते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे यू कैन से फियर, उसके साथ स्टिग्मा जुड़ जाते हैं और बहुत सारे एक्शंस गवर्नमेंट लेना चालू कर देती है, एंड दोज एक्शंस आर डायरेक्टली इंपैक्टिंग इकोनॉमी, यस और नो। अगर वो इकोनॉमी को इंपैक्ट करने वाले हैं तो इट इज़ रियली क्रूशियल कि भैया हम उससे बिल्कुल दूर रहे। सो दोस्तों, अब ये पेंडेमिक तो बोल दिया है ना, करीबन 116 से ज़्यादा कंट्रीज में ये फैल चुका है, ठीक है, और इसको जनवरी 30 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बोला था, बट मार्च में इसको बोल दिया कि भैया देयर इज डेफिनेटली अ पेंडेमिक, ठीक है, SARS-CoV-2 को। सो दोस्तों, ये जो वर्ड्स आप अखबार में पढ़ते हो उन सबके मतलब क्या होते हैं। इनफैक्ट पीपल एक्चुअली गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले देखते हैं आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है सडन राइज इन द केसेस ऑफ अ डिजीज इन द प्लेस, दैट्स कॉल्ड आउटब्रेक। ओके, सडन राइज। दूसरा, एपिडेमिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिडेमिक? एपिडेमिक इज अ स्प्रेड ऑफ डिजीज in a localized area of a particular country, ठीक है, that is called epidemic. Okay, so we had a plague. Okay, ठीक है, plague. हमारा सूरत was known for plague, yes or no? 1994 में सूरत में plague आया था, शायद आप पैदा नहीं हुए होंगे, but anyway, ठीक है, so that's called plague. Pandemic, ठीक है, it is a spread of disease का measure है दोस्तों, ठीक है। So you have epidemic, ठीक है, or rather you have a word called endemic, you have epidemic, ठीक है, एंड योर पेंडेमिक। व्हाट इज एंडेमिक? एंडेमिक का मतलब होता है समथिंग विच इज इन अ क्लोज रीजन, लाइक मलेरिया। मलेरिया जनरली इज एन एंडेमिक इन नेचर. What is epidemic? Spreaded towards larger region, okay, but within a confinement of a country, while pandemic is across the continents, ठीक है. So it is epidemic that is spreaded in on a more global scale, that is called pandemic. It implies higher level of concern than epidemic. Obviously there is no fixed number of cases or that determine when outbreak is considered to be pandemic, ठीक है. WHO अलग अलग फैक्टर से देखता है, जो मैंने अभी आपको बताया था वैसा. इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आपको बताया, इट इज अ टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ symptoms of that illness, that's called incubation period. ये नए वायरस के लिए it may be 2 days to 14 days का टाइम माना जाता है, ठीक है. ओके, नाउ दिस आर द क्लियर कट डिफरेंस यू शुड नो, क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन, ठीक है. सो क्वारंटाइन, इट इज रिस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट ऑफ हेल्थी पीपल who may have been exposed to an infection to see if they become ill or not, ठीक है. So for example, let's say Mr. A and Mr. B. Mr. B is a, you can say, corona positive, okay, ठीक है, और Mr. A has come into contact of the person. So Mr. A को क्वारंटाइन कर दिया है, ठीक है ना. नाउ दे ट्राई एंड सी ये इंक्यूबेशन पीरियड तक उसको अलग रखेंगे, वो देखेंगे कि वो साइन उनको आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, सिम्टम्स की. अगर सिम्टम की साइन आ गई तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव डिक्लेयर कर देंगे, यस और नो. सो दिस इज कॉल्ड क्वारंटाइन. व्हाइल आइसोलेशन इज ये मिस्टर बी को सेपरेट करना, ठीक है, दैट इज आइसोलेशन, सेपरेटिंग sick people from healthy people to prevent spread of disease. This is called isolation. Is this very clear? ये confusion नहीं होना चाहिए दोस्तों. People with infection are put in isolation in hospital, while people who have come into contact with someone, they are put into quarantine in their home. Okay? This is pretty okay with everyone. चलिए, ग्रेट है दोस्तों, ठीक है. सो what are the various aspects are being looked at by, you can say, WHO to declare a disease to be pandemic? We discussed about this: absence of vaccine, no standard protocol, and threatening lacks of people. And generally the virus has to be a brand new. That is basically the idea, ठीक है. Okay, so why Ebola was not pandemic? Ebola was not pandemic because it killed thousands of people in Western Africa only.
ओके, सो इट वॉज मेजरली इन द वेस्टर्न अफ्रीका, है ना, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, है ना, इबोला तो वहाँ की एक नदी का नाम था, ठीक है। ओके, सो ये जो पेंडेमिक है दैट इज कोरोना, ठीक है, विच इज रियली ह्यूज। सो दोस्तों, मेजर एग्जांपल्स ऑफ प्रीवियस पेंडेमिक वर 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ था, जिसने करीबन 20 to 50 मिलियन लोगों की मौत करी थी। दिस इज ह्यूज, ठीक है। अनदर टाइम कोलेरा बिकेम पैंडेमिक। आजकल कोलेरा होता नहीं है क्योंकि उसकी बिल्कुल अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं दोस्तों, ठीक है। सो इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मल्टीपल टाइम एज पैंडेमिक बिटवीन 1817 to 1975 तक, ठीक है। इन 1968 पैंडेमिक वॉज डिक्लेयर्ड फॉर H3N2 विच इज स्वाइन फ्लू बोलेगा उसको, ठीक है। एंड लास्ट पैंडेमिक वॉज 2009 इन H1N1, ठीक है। इज दिस कंफर्टेबल टू एवरीवन? चलिए, ग्रेट है दोस्तों, ठीक है। सो आई एम श्योर नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर आस्पेक्ट रिलेटेड टू दिस COVID-19, okay? In case you like this particular video, please subscribe to our channel, like this video, tell it to large number of people to spread this information about Pro Talents CAT program, okay? All this information is for your exam point of view, okay? Thank you very much and all the best.